Hello student, welcome to our Saraswati classes Shri Ganganagar. I am Sapna Malhotra. Today we are going to start our new subject which name is Economics of class 12th. Here we will do all the chapters and today we will start our new chapter. It's a chapter number 1 which name is Introduction. Students, its another name is Central Problem of Economics also. So we will start it by its introduction. In introduction or in our book, the first heading is Simple Economy. Simple economy, which means every economy has its own importance. All the people are living in their own economy. So we know that we need many goods and services in our routine life like food, shelter, clothing, transports, doctors, teachers, etc. Okay, we need many type of goods and services. So another question arises here, can we pay for all goods and services? Yes, my question is here, can we pay for all goods and services? Which means one can fulfill his all wants and desires? Yes, so I am asking you that one can fulfill his all wants and desire, so its answer will become in no. We know that in economics there is the problem which called problem of choice. We will study after this. In simple economy, every person is living his own way, like a farmer, like a doctor. Okay, farmer is getting income and he will spend on some, he is a farmer, so he has the food items. So he can spend on another items like clothing, like shelter, like other items. He will have to do. Why? Because he is a farmer. He can't produce all type of goods and services. Like in this way, doctor is getting income by the serving people. He will spend also his income on some item like food, shelter, clothing, other item also. Okay. तो स्टूडेंट्स आप पहले से नोट कर लीजिए. Yes students, our next heading is Central Problem of an Economy. This is the most important topic in this chapter. So further now we will discuss that a person has many type of wants and desire. We know that, okay, and one cannot fulfill all the wants and desire in his or her life. But the problem is here that wants and desire level is so high and the sources that we can count in income is very low. This is the main problem. You can see the arrows. This is the main problem. This one is very high and this one is very low. Then how can we balance all of the particles? So now the problem arises here, which name is problem of choice. In economics, all the economists call it problem of making a choice. This is our main problem, students. So in every problem there will be some reasons. So first of all we will discuss about the reason behind it. So there are some reasons. The first one is unlimited wants. We know that person has many type of wants and desire. Can we fulfill all of them? Its answer no. Why? Because we have very less sources. We can say we have very limited. I will write here, we have very limited source. So these endless wants cannot be fulfilled on the behalf of limited source. So one cannot fulfill all the desire and wants. You will have to learn this first one, unlimited wants. The next one is scarcity. Scarcity means shortcoming. In simple economy there will be no problem if all the goods and services are provided according to their demand. So I can write here, if demand is equal to supply, or another one, if demand is less than supply, then there will be no problem. But the problem arises here when the demand greater than supply. Why? Because limited source, limited resource, we cannot fulfill all the demand of the society. So we will have to choose most of them which will be preferred by most of group of people. Okay.
The third one is alternative uses. We know that one product or one services or one investment has many alternative uses also. For example, if I am telling you that I want to invest or our government want to invest some big amount, so here will be three option, maybe three option. The first one is hotels, the second one is houses, the third one is apartments. So there will be some options. So where will I put all the money? It will be depend on the purpose or uses of the facility or the services. So we can say there are alternative uses, so choice has to in their use. Yes students, so please note down this. Yes student, next heading is what are the problems of economy. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर में। बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी हेडिंग पर आते हैं, तो हम इसी को डिस्कस करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है उसकी मेन या उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है वो क्या है। अभी हमने लास्ट यही पढ़ा है कि जो हमारी वांट्स, जो हमारी डिज़ायर हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो बहुत सारी हैं, उनको हम लिमिटेड सोर्स में पूरा नहीं कर सकते, तो वहीं पे हमारे सामने एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है आई थी। नेक्स्ट अब हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन, स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होती है। WH वर्ड का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क होता है। तो WH वर्ड में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि हम किस चीज़ का उत्पादन करें और कितनी क्वांटिटी में करें। ये तो दोस्तों वो बात हो गई जैसे कि घर में जब पूछा जाता है कि आज खाने में क्या बनाएं, तो उसका आंसर हमें मिलता है कुछ भी। इस कुछ भी का आंसर देना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे ही इकोनॉमी के लिए ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना भी बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। सो देयर आर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज दैट दी सोसाइटी वांट। वी नो दैट कि सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग रहते हैं, सब लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हम सबसे पहले उन सर्विसेज या गुड्स के प्रोडक्शन को लें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो कि मोस्ट ऑफ पीपल को कवर करती है। जैसे सबसे पहले मैं इसमें बात करूं तो हमारी आती हैं बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स हमारी ऐसी नीड्स होती हैं जिसको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, तो ये हमारे लिए मस्ट है। इसके बाद मैं अगर सेकंड बात करती हूँ तो मैं लग्जीरियस के बारे में बात कर सकती हूँ। तो यानी कि जब मैं क्वेश्चन मेरा आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, तो मुझे सबसे पहले उसमें एक लिस्ट देखनी पड़ेगी कि जिसमें सबसे पहले मेरी बेसिक नीड के बाद मेरी अदर नीड्स को कंप्लीट करने का करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है WH वर्ड में हाउ टू प्रोड्यूस। अभी हमने ये देखा कि हम प्रोडक्शन करेंगे, हम कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। अब हमारा अनदर क्वेश्चन इसमें ये आता है कि उनको हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि हमने खाना बनाने के लिए एक आइटम को डिसाइड तो कर लिया, बट अब वो आइटम को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही हमारी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो प्रोडक्शन हम करेंगे उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आप लोगों ने सुना होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली 5 प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो होता है कैपिटल और लेबर। कैपिटल और लेबर के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैपिटल को ज़्यादा रखें या लेबर को कम रखें। अगर मैं बात करती हूँ कि कैपिटल को ज़्यादा रखना है या लेबर को कम रखना है, या मुझे लेबर्स ज़्यादा करनी है, मुझे कैपिटल कम करनी है, तो यहाँ पर मुझे कुछ इसमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि कौन सा तरीका, क्योंकि एक काम को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, तो कौन सा तरीका जो है वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। जिसके अंदर अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ये मुझे लार्ज स्केल पे करना है या स्मॉल स्केल पे करना है, क्या क्या टेक्निक्स मैं इसमें यूज़ कर सकती हूँ। टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो आज हमारे पास बहुत नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो कौन सी टेक्निक मेरे बजट में है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किसी चीज़ को कैसे प्रोड्यूस करूँगी। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस।
दिस इज ऑल्सो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन दैट फॉर whom टू प्रोड्यूस। देखो हमने यहाँ ये तो डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पर कुछ बनाएंगे, कुछ प्रोड्यूस करेंगे, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है। उसके बाद हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम उसे कौन से वे में बनाएंगे, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, कितना कैपिटल, लेबर एसेट्रा उसमें यूज़ करेंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आ गया कि हम ये बना किसके लिए रहे हैं, फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसका एक आंसर जो हमारे सामने आता है, हम जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कंज्यूमर, क्योंकि एक कंज्यूमर ही तो होता है जो हमारी बनाई गई चीज़ों को यूज़ करता है। तो कंज्यूमर के भी कुछ टाइप्स होते हैं कि जब हम किसी भी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसका एक एरिया डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल वो रिच के अकॉर्डिंग बनाएंगे या पुअर के अकॉर्डिंग बनाएंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग एसेट्रा। ऐसे बहुत टाइप के हमारे सोसाइटी के अंदर हमें ब्लॉक्स मिलेंगे। तो हु विल कंज्यूम दी गुड्स? So here will be many options like rich, poor, organization, etc. So जब भी आप, जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि खाने में क्या बनाया जाए, तो आंसर था कुछ भी। अब हमने डिसाइड किया कि हमें आज डिनर में दाल बनानी है, तो दाल मुझे कितने जनों के लिए बनानी है, कितने जने इसमें इंक्लूड होंगे, तो ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ से मिलते हैं। यानी कि ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, ये 3 प्रॉब्लम का नाम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होता है स्टूडेंट्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन का मतलब हो गया कि हम उसको कैसे कैसे जो है डिवाइड करेंगे, तो हम उसको 3 तरीके से इसमें बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। अनदर प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन हो जाती है कई बार हमारी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि देखिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है स्टूडेंट्स। ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, यूज़ हमें उसका बेस्ट करना है, ऐसा यूज़ करना है कि जो उससे हमें मिलेगा वो हमें बेस्ट मिलेगा और हम उससे अपनी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ला सकते हैं। ये तो आपको भी पता है, अगर किसी चीज़ का यूज़ हम कम करेंगे तो जो उसकी यूटिलिटी है वो वहीं पर रह जाएगी, या कहें कि जो उसका यूज़ है वो कम रह जाएगा। तो हमें उस चीज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन तभी होएगा जब उसका हम फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। सो सिंस रिसोर्सेज आर स्केयर, देयर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ ए वेस्ट। कि यानी अगर हम अपने रिसोर्सेज जो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड हैं, कम हैं, स्केयर हैं, तो अगर हम उसका यूज़ अपने फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए करना चाहते हैं तो हमें उसको फुल यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर हमने उसको फुल यूटिलाइज नहीं किया तो फिर जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ नोट डाउन दिस। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विच नेम इज़ इन शॉर्ट PPC। PPC जो है हमारा प्रोडक्शन के लिए है कि अभी हमने जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स कुछ डिस्कस की थी कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, इन विच क्वांटिटी एसेट्रा। सो द नेक्स्ट इज अराइज हेयर दैट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन, कि हम जो अपने प्रोडक्शन है उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी कर सकते हैं, किस क्वांटिटीज़ में, किसके साथ हम किस प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि PPC डिपिक्ट ऑल दी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी। कि जो हमारा PPC कर्व, PPC में C जो है वो कर्व होता है, कर्व जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो PPC होता है वो हमें हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है। वो कॉम्बिनेशन जो होता है वो 2 गुड्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें हम उन 2 गुड्स में क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, किस रिसोर्सेज के साथ और किस टेक्नोलॉजी के साथ में, तो उसका एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होता है वो PPC होता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से रिसोर्सेज अवेलेबल, कि जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था हमारे जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्स से हमें उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होता है। वो बेस्ट यूटिलाइजेशन कौन से प्रोजेक्ट में सही आएगा उसके लिए हमें ये PPC बनाना पड़ता है। तो रिसोर्सेज अवेलेबल, कि जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस, उनको हम यूज़ कर सकते हैं प्रोड्यूस करने के लिए क्या, वेरियस अल्टरनेटिव
गुड्स। जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि हमारे पास अल्टरनेटिव गुड्स या इसके यूजेस होते हैं, तो हम बहुत सी जगह पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको वेरियस अल्टरनेटिव के बीच में प्रोड्यूस करने के लिए जिसे यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए कुछ एजम्पशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी टॉपिक जब हम करेंगे उसकी अपनी अपनी एजम्पशंस होती हैं। बिना एजम्पशंस के हम जो बातें यहाँ पर बता रहे हैं उनका महत्व कम हो जाता है। अगर हमने एजम्पशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कल को स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि मैम इसके अंदर हमने यही क्वान्टिटी क्यों ली, इसका यही रिलेशन क्यों है, तो इसके लिए हमारे पास एक ग्राउंड है, एक बेस है जिसके बिहाफ पे हम इसको बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं बताई गई हैं, जिसमें से सबसे पहले है कि ओनली 2 गुड्स टू प्रोड्यूस। जैसे कि अभी हमने बताया था कि जो पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करते हैं वो 2 गुड्स की देखते हैं कि हम एक साथ जो है 2 गुड्स पे कितना स्पेंड कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी पहली अजम्पशन या पहली शर्त इसकी हम कहें तो वो होती है 2 गुड्स के बारे में। सेकेंड इसमें आता है टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो टेक्नोलॉजी वर्ड है वो डे टू डे चेंज होता ही रहता है। चेंज इज़ इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, वी नो दैट। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज होती रहती है। आज अब हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम करने जा रहे हैं, हो सकता है 4 दिन बाद में वही टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो फिर हमें वापस अपने उस प्रोजेक्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी जो पीपीसी बना रहे हैं उसके लिए हमने ये एज्यूम किया है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है जिस पे हम काम करेंगे वो भी कांस्टेंट रहेगी। थर्ड नंबर पे हमारी आती है देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। In economics, we know that there are some factor of production in which capital, land, labor, they are the most important factor also. तो यहाँ पर हम ये भी assume करते हैं कि जो हमारे ये factor of production है वो भी क्या रहेंगे, unchanged रहेंगे, उसमें कोई भी change नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनको हमें फुल यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इस पे देखते हैं एक टेबल में कि हमारा जो पीपीसी है ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि इन्होंने बताया हम यहाँ पर 2 गुड्स ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर आप कोई भी 2 गुड्स ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर राइस लिया है और क्लोथ्स लिए हैं। यहाँ पर मैं इनके कॉम्बिनेशंस बना रही हूँ ABCDE, यानी कि अगर मैं ए कॉम्बिनेशन की बात करती हूँ तो अगर मैं सारा का सारा मेरा यूटिलाइजेशन यूज़ करने के बाद में जो बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे मैक्सिमम जो है क्लोथ्स की मैक्सिमम यूनिट कितनी मिलेगी, 10 यूनिट मिलेगी। लेकिन अगर मैं पूरा का पूरा यही स्पेंड कर रही हूँ तो फिर यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसको 0 लिखूँगी। जस्ट इसका रिवर्स हम यहाँ देख सकते हैं। अगर हम इसका फुल मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हैं तो वो मैक्सिमम हमें 4 यूनिट मिल रही है, लेकिन अगर आप इधर इस पर मैक्सिमम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन तो यही आ गए कि एक पे 0 है तो दूसरे का हम फुल मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर हम पहले को फुल मैक्सिमाइज कर सकते हैं तो दूसरा 0 हो जाएगा। अब बीच की सिचुएशन आ गई। हम जानते हैं कि जब हमारे पास रिसोर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं तो हमें उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि हम उतने ही अमाउंट में दोनों प्रोडक्ट को इंक्लूड कर सकें। तो हम ज़रा देखते हैं इसके अंदर। जैसे ही मैंने 10 से इसको 8 किया तो इट मीन मैं 1 यूनिट इसकी भी परचेज कर सकती हूँ, जिसको मैंने सेकंड या बी पॉसिबिलिटी बता दिया। यानी कि बी पॉसिबिलिटी में अगर मैं 10 की बजाय 8 यूनिट ही यहाँ पर करती हूँ तो मुझे 1 यूनिट राइस से मिल जाएगी। तो ये मेरा हो गया बी कॉम्बिनेशन। सी कॉम्बिनेशन का मतलब अब मैंने 8 से भी मैं इसको कम पे ले आई, 5 पे आ गए। तो 5 पे आने के बाद अब मैं इसकी मोर यूनिट जो है आगे प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो यानी कि इसकी 2 और इसकी 5, ये मेरे पास रेशो आ गया। ऐसे ही अगर मैं डी की बात करती हूँ तो जो रिलेशन है वो आप यहाँ पर देखोगे कि जब मैं किसी भी मैक्सिमम यूनिट को जब डिक्रीज करते जा रही हूँ वैसे ही उसके रिवर्स में जो राइस की क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है।
ठीक है, क्योंकि जब हम एक को गिव अप करेंगे तभी हम दूसरे को इंक्लूड कर सकते हैं। इसी के बीच में एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है फ्रेंड्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यही होता है कि जब एक को छोड़कर आप दूसरे को प्रेफर करते हो तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाती है। बाकी मैं आपको इसके नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी जिसमें आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम इसी को ग्राफ पे देखते हैं। ग्राफ के लिए जैसे कि हमारा 0x एक्सिस जिस पर हमने राइस को लिया है, 0y जिस पर हमने क्लोथ्स को लिया है। अब हमने इनका कॉम्बिनेशन बनाया तो ये 0 से स्टार्ट करते हुए जैसा कि आप देख रहे एक आँख बन गया है, ठीक है, यानी कि ये इसका 0 आ गया और ये इसका 0 आ गया। अब हमने देखिए ये एक बनाया है PPC, इसको हम बोलते हैं PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पर हमें ये ग्राफ में कुछ कॉम्बिनेशंस को बता रहा है कि हम जो अपने कॉम्बिनेशंस है किस किस क्वांटिटी पे कैसे कैसे हम उसको इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। तो ए कॉम्बिनेशन जैसे कि 0-10 का है, जैसे 1-8 का है, ऐसे ही हमारे पास देखिए ये ABCDE प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ नोट डाउन दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगी और जो भी आपको इसमें डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।